آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ یہ پادری صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ سب سے پہلے آپ کو ہیپی مدرس ڈے۔ اور یہ جو انہوں نے یہ لفظ کہا ہے کہ آپ ساری بیٹیاں لگ رہی ہیں، میں ماں ہوں، آپ بیٹیاں ہیں، اور میں اس میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ جب میری ایج سے بڑا مجھے موم کہتا ہے تو میں کہتی ہوں اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی، اپنی کلیسیا کی ماں ہوں۔ بچوں کی تو ماں ہوں، لیکن سب سے بڑا فخر میرا یہ ہے کہ میں اپنی کلیسیا کی ماں ہوں اور مجھے ماں کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑا فخر ہے کہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ماں کہتے ہیں اور ماں جیسی عزت بھی دیتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور آج یہ بڑی خوشی کا دن کہ اس دنیا میں یہ ایک دن ٹھہرایا گیا کہ ماں کو ویلیو دی جائے، اس کی ماں ہونے کی حیثیت کو یاد کیا جائے۔ ہم اکثر نہیں جانتے، فیل نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کہ ماں کی کیا ویلیو ہے۔ جب زندہ ہیں ماں تو اس کی کوئی قدر ویلیو نہیں، اور بعد میں ہم فیل کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن آج جو ماں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گی، اور خداوند نے مجھے جو کلام آپ کے لیے دیا ہے ماؤں کے لیے اسپیشلی، میں اس کو یاد کرتی ہوں، ان ماؤں کو یاد کرتی ہوں، اور ان ماؤں کے لیے اپنے دل میں ایک مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسی ایسی دنیا میں مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے قربانیاں دی، بچوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو آج اس کلام کے ہی وسیلہ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بائبل مقدس میں بھی ان ماؤں کا ذکر ہے، اور کس طرح اس دنیا میں بھی ایسی ماؤں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے ہی سیکھتے ہیں کہ ماں کا کردار کیا ہے اور ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی ہے۔ سب سے پہلے نکالے میرے ساتھ متی کی انجیل پاک، اس کا 23واں باب اور اس کی 37ویں آیت 37۔ متی 23واں باب اور 37ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ خداوند کے کلام میں ماؤں کے لیے کیا کیا لکھا گیا ہے۔ 37ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے تو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہے۔ یہ جو آج ہم سیکھیں گے ماں کے بارے، کہ جس طرح لکھا ہے کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ آج کا یہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو تحفظ دیتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، سنبھالتی ہے، چھپاتی ہے، بچاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ماں کا کوئی نعم البدل نہیں۔
माँ जैसा किरदार कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर यस्सु मसीह ने इस बात को दोहराया है, याद किया है। उसने ये नहीं कहा कि मुर्गा, उसने कहा मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है। माँ को, फीमेल को कहा गया है कि माँ अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसी तरह यस्सु मसीह भी एक माँ का और बाप का दोनों का रोल अदा करता है। यस्सु भी हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें हालात और इस दुनिया से और बदी से और बड़ी बड़ी आजमाइशों और बीमारियों से हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। उनको जो उसकी हजूरी में आते और उसके साथ लिपटे रहते और उसकी इबादत करते और उसका हुक्म मानते, तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्योंकि यस्सु के लहू में क्या है? तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यस्सु का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है। यस्सु का लहू। यहाँ हम देखते हैं कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो बच्चों को दुख में कभी देख नहीं सकती, कभी परेशान नहीं देख सकती। बीमारी की हालत में हो, दिन और रात उसके लिए जागती है। माँ आंसू बहाती है। कई दफ़ा माएँ ऐसे कहती हैं कि जो दुख इससे है कि मुझे लग जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो। वो इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ देती है, वो अपने बच्चे को छुपा लेती है दुनिया के हालात से। इस दुनिया में जो बुराई और बदी है और बीमारियां है और परेशानी है और बुरी सोसाइटी है, वो उससे बच्चे को छुपाती बचाती फिरती है कि कहीं मेरा बच्चा इस बदी में या बुरी सोसाइटी में या इस बुरे कल्चर में ना चला जाए। माँ इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ देती है। माँ एक कुर्बानी का नाम, कुर्बानियाँ देती आई। जिस तरह अभी हमारी सिस्टर क्रिस्टीना, जिनका आज मेमोरियल सर्विस है, उनके बारे में मेरे पास बड़ी बातें, गवाहियाँ हैं उसकी। वो एक ऐसी माँ थी जिसने अपने बच्चों को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया। बेशक वो हालात में और सोसाइटी में और ऐसे कल्चर में फंस गई, लेकिन वो ऐसी माँ थी कि वो उनको बचाती फिरती थी, छुपाती फिरती थी। उनके लिए बहुत स्ट्रगल उसने की है, आखिर तक वो उनके लिए सब कुछ करती रही। पाकिस्तान से उठाया और कहाँ से लिबिया और फिर वहाँ इटली में वो उसे लेके उन बच्चों को संभालती कि मेरे बच्चे बुरी सोसाइटी से बचे, इन हालात से बचे, इस पाकिस्तान में जो भी कुछ हुआ वो बच जाए और महफूज रहे। इतनी कोशिश एक माँ के होते हुए, कितनी दिलेर माँ थी। बेशक उनका बाप नहीं था, लेकिन ऐसी दिलेर माँ थी कि उसने अपने बच्चों को ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया कि वो देती उनके लिए अच्छा काम करती उन्हें संभालती वो ऐसी जंग लड़ती हुई, बीमारी में, हालात में उसने जंग लड़ी है। लेकिन खुदा ने उसके बच्चों को माँ के वसीला से कामयाब कर दिया, क्योंकि माँ ने एक रोल अदा किया। कि माँ, जिस तरह मैं कहती हूँ कि माँ एक कुर्बानी का नाम है, कुर्बानियाँ देती है अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे इस दुनिया में एक अच्छा मकाम हासिल कर ले, एक अच्छी जगह पे रहे, अच्छा खाना पीना हर चीज़ इनको मिले। इस तरह का वो तहफ़्फ़ुज़ देती है। जिस तरह मैंने पढ़ा है कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पर तले छुपा लेती है। आपने देखा होगा, अक्सर हम बाहर के हालात में भी देखते हैं कि जब मुर्गी अपने बच्चों को लेके बाहर फिरती है, दाना दुगना उसके लिए चुनती है और एक एक दाना अपने बच्चों के सामने खाने के लिए वो रखती है, एक एक दाना। और मैंने पिछले दिनों एक फेसबुक पे देखा कि मुर्गी अपने बच्चों को एक एक दाना निकाल के आगे रख रही है, चूज़ों के आगे, और जो मुर्गा है वो खुद खाता चला जा रहा है। उसने नहीं देखा कि मुर्गी बच्चों को खिला रही है। वो बच्चे अगर मुर्गी के हैं तो मेरे भी हैं, लेकिन उसका अपने मुंह की तरफ
इशारा था। वो कहता मैं ही खाऊं, लेकिन मुर्गी अपने मुंह में नहीं डाल रही बल्कि अपने बच्चों के मुंह में एक एक दाना निकाल के देती। इसी तरह माँ का किरदार है। अक्सर सारी माएँ, जिस तरह मैं अपने दिल में सोचती हूँ, सारी माएँ ऐसी हैं कि कई दफ़ा ऐसा खाना होता है कि मैं कहती हूँ कि ये तो फलां बच्चा खाता है, ये इसको पसंद है, तो मैं खाते खाते मेरा हाथ रुक जाता है और मैं उसको फिर संभाल देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, फलां बच्चा आएगा तो ये खाएगा, मैं नहीं खाती, मैं कुछ और खा लूँगी। तो इसी तरह सारी माँओं का ये किरदार है। सारी माएँ इसी तरह अपने बच्चों के लिए करती हैं कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ इनको दी जाए। माँ खुद भूखी रह लेती है, लेकिन बच्चों के लिए वो दाना दाना चुनती फिरती और बच्चों के मुंह में खुराक डालती। और आपने देखा होगा कि जब बच्चे मुर्गी के या किसी भी परिंदे के, जब कोई ऐसा परिंदा खूंखार या ऐसा दरिंदा आ जाए तो वो अपने बच्चों को ऐसे संभालती फिरती है, वो छिपाती फिरती है अपने बच्चों को कि कोई परिंदा उसकी तरफ झपट नहीं जाए। जिस तरह कहते हैं कि लड़की तो एक छिपकली से डरती है, लेकिन अगर उसके बच्चों की तरफ कोई मगरमच्छ भी आ जाए तो वो उसका भी मुकाबला करती है। ये मेरे तजर्बे की बात है जो मैं आपके सामने शेयर करूँ, और आप सब माँओं का ये तजर्बा है ना, कि अगर बच्चे को कोई चीज़ काटने वाली उसके करीब आ जाए तो बेशक माँ डरती भी होगी, लेकिन उसने उसको बचाने की कोशिश करनी। वो उस वक़्त उसके अंदर वो खौफ नहीं, वो इतनी दलेर हो जाती है कि मैंने अपने बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देना, मैंने अपने बच्चे को संभालना है। इसी तरह जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों के लिए करती है, इस तरह एक माँ भी अपने बच्चों को संभालती, बचाती, छुड़ाती, हालात से, इन आजमाइशों से, इस बुरे कल्चर से, इस बुरी सोसाइटी से वो कोशिश करती है कि अपने बच्चों को वो छुपा के रखे, बचा के रखे। माँ बच्चे की तरबियत करती है, वो यीशु के पास लेकर के आती है, इसलिए कि यीशु के लहू में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यीशु के लहू में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी, वो हमें संभालता है। आजमाइशें आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, लेकिन जब हम यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर के आएंगे तो खुद यीशु मसीह हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदानों को, हमारी नस्लों को संभालेगा। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, आप उस स्टोरी से वाकिफ़ हैं कि जब यीशु के पास माएँ बच्चों को लेकर के आएंगी, हो सकता है बाप भी साथ हों, लेकिन माँओं का जिक्र है कि यीशु के पास लेकर के माएँ आती हैं। बेशक शागिर्द झिड़कते हैं, रास्ता रोकते हैं, रोब झाड़ते हैं। जिस तरह आजकल इंतज़ामिया आपने देखा होगा, अब बच्चे न लियावा थे, अब बच्चे शोर कर देने, अब बच्चे बाहर छड़ के आओ, अब बच्चे लो नहीं है थे आंदा। लेकिन उन्होंने मुकाबला किया और कहा कि हम अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर के जाएंगे, ताकि एक एक बच्चे के सर पर जब हाथ रखा जाएगा तो खुदावंद किस कदर ताहयात उनको बरकत देगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अच्छी माँ है वो अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर के आती हैं, अच्छी तरबियत करती हैं, उन्हें संभालती हैं, उन्हें बुरी सोसाइटी से बचाने के लिए यीशु के पास लेकर के आती हैं। और देखा आजकल के हालात, माँ को बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रूहानी तौर पर उनकी बुनियाद, फाउंडेशन ऐसी रखे शुरू ही से कि वो यीशु के पास उन्हें लाएं, ताकि जब वो बड़े हों तो वो हालात का मुकाबला करें और अपने कलाम में से लोगों का मुकाबला कर सके गैर कौमों के सामने, और बच जाएं, और जवानी में के याम में वो अपने खुदा का कलाम इस कदर उनके अंदर बस जाए, उनकी जड़ों में बस जाए, उनके दिलों में बस जाए कि वो कभी उससे ना मुड़ सके। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपने बच्चों की उस राह पे तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। हालात कैसे हों, गैर कौमों में हम रहे, लेकिन जब शुरू ही से माँ यीशु के पास ले आती है
तो फिर बच्चे की बुनियाद इस कदर मजबूत हो जाती है रूहानी तौर पर कि वो बूढ़ा होकर भी उन बातों से नहीं मुड़ेगा। ये माँ की एक तरबियत रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर भी वो बेशक कोशिश करती है कि वो एक अच्छा इंसान बने, वो अच्छा किरदार अदा करे, वो सोसाइटी में, इस कल्चर में एक बड़ा आदमी बने, इसका नाम हो। लेकिन माँ ही कोशिश करती है, माँ ही दुआ करती है, माँ ही उसे बचाती है। माँ पसे पर्दा रहकर अपने बच्चों के लिए इस कदर दुआएं करती है कि बच्चों को नहीं पता कि माँ मेरे लिए क्या क्या दुआ करती है, कौन सी कामयाबी के लिए, किस बात के लिए माँ अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देती है और दुआएं करती है। इसी तरह माँ का एक ऐसा रोल है, ऐसा किरदार है कि वो अपने शौहर के लिए भी एक माँ का किरदार अदा करती है। मैंने अपने तजर्बे की ये बातें आपके सामने शेयर करती हूँ और ये आप सबका भी तजर्बा है कि घर में बेशक बच्चे हैं, लेकिन किसी की बात मैं कल ही अभी सुन रही थी कि इस औरत ने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, फिर कहते नहीं नहीं मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, उसका शौहर साथ खड़ा था, ये मेरा बच्चा है, इसलिए कि मैं बच्चों की तरह इसको तहफ़्फ़ुज़ देती, इसकी परवरिश करती हूँ, इसको खाने को देती हूँ, जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हूँ, खाना खिलाती हूँ, हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, उसकी सेहत का ख्याल रखती हूँ, उसके सोने का, उसके उठने का, और उसकी हर बात में उसको अच्छा मशवरा देती हूँ। इसकी भी मैं माँ, ये मेरा भी तजर्बा है। हारी साहब खाना खा रहे हैं, थोड़ी सी प्लेट आगे कर लो, शर्ट पे गिर ना जाए, टाई पे ना लग जाए, गंदा हो जाए। इधर होके बैठो, उठो, टाइम हो गया। और इनकी ये आदत है, मैं माँ की बात करती हूँ कि माँ अगर बच्चों को सुबह स्कूल के लिए, जॉब के लिए उठाती है तो अपने शौहर को भी उठाती है। और इन्होंने जब कहीं जाना है, चाहे रात के सुबह के 5 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, इन्होंने मुझे कहना यास्मीन मुझे इस टाइम पे जगा देना। मेरी तो ड्यूटी लग गई, मैं तो सो नहीं सकती, मैं तो जागूंगी, इसलिए कि मैंने टाइम पे इन्हें जगाना है कि लेट ना हो जाए, इन्होंने पहुंचना है वहाँ पे। जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए रातों को जागती, उठती, नींदें खराब करती है, वो अपने शौहर के लिए भी एक माँ का किरदार अदा करती है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में एक बड़ी अच्छी वो मुझे आयत लगती है, और मैंने कहा कि ये ज़बूर की किताब में से 128 ज़बूर और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, अगर पास्टर नदीम पढ़े तो ये एक इतनी खूबसूरत मुझे ये आयत लगती है। 128 ज़बूर और 3री आयत नंबर 3। और उसकी 3री आयत में लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। बैठ जाए। ये इतनी खूबसूरत आयत है, ये इसमें शौहर भी शामिल होता है, बच्चे भी हैं और शौहर भी है, जिसमें लिखा तेरी बीवी मेवादार ताक की मानद। मेवादार ताक यानी उस फलदार दरख्त की मानद है कि जिसके साए में उसके बच्चे भी बैठते हैं और उसका शौहर भी बैठता है। बीवी के बारे में ये लिखा है कि वो बीवी मेवादार ताक की मानद है, इससे मुराद फलदार दरख्त की मानद, वो दरख्त जो फूल देता, और फिर उस दरख्त की मानद जिसकी छांव में बैठकर बच्चे, औलाद और उसका पूरा ख़ानदान राहत पाता है। हम देखते हैं कि जिस तरह एक घर में ईमानदार माँ, ईमानदार बीवी जब घर में होगी और ऐसा माहौल होगा कि वो शौहर और वो बच्चे कभी मायूसी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते,
परेशान नहीं हो सकते, इसलिए कि इसमें बाइबल मुकद्दस में ये जिक्र है मेवादार ताक की मानद, फलदार दरख्त की मानद, जिसके साए में उसकी औलाद बैठती और राहत और खुशियाँ पाती है, दुआएं करती है, रोज़े रखती है, उनके लिए मुस्कुराती है, चाहे दुख में हो, परेशानी की हालत में हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए वो खुश रहती है, चाहे हालात कैसे आ जाए, चाहे माहौल किसी तरह का भी क्रिएट हो जाए घर में, लेकिन माँ ऐसा किरदार अदा करती है उस फलदार दरख्त की मानद, जिसके साए में उसकी औलाद और उसका शौहर बैठते हैं। हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत आयत मैंने आपके सामने ये पढ़ी है। रूहानी तौर पर भी माँ अपने बच्चों की तरबियत करती है। अगर हम शुरू ही से देखते हैं, हमारी माएँ जो चली गई खुदा के पास, उन्होंने हमारी तरबियत की, हम उन्हें याद करते। आज वो हमारी तरबियत ना करती तो हम आज खुदावंद की हजूरी में उसके कदमों में ना होते, हम उससे दूर होते, लेकिन हमारी माँ ने हमारी तरबियत की है। जिस तरह कलाम में लिखा है कि माँ की बच्चों की इस तरह की तरबियत करके वो बूढ़ा होकर भी ना उससे मुड़े। हम बूढ़े हो चुके, बूढ़े होने को जा रहे हैं, उतने बूढ़े तो नहीं, लेकिन बूढ़े होने को जा रहे हैं। बूढ़े होने तक वो ना मुड़े। हमारी माँ ने हमारी तरबियत की है। और दूसरा तिमोथियस, उसका अगर हम ये पढ़े, दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब और 5वीं और 6ठी आयत में ये लिखा हुआ है। 5वीं और 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि किस तरह खुदा के बंदे को उसकी नानी और उसकी माँ ने उसकी तरबियत की है, किस तरह उसकी माँ ने उसकी तरबियत की और फिर नानी ने भी की। अगर हम करते हैं तो हमारी माएँ और हमारी नानियाँ भी उन्होंने इस तरह की तरबियत की है कि आज हम अगर कोई कोशिश भी करें ना हमें अपनी जगह से ईमान में हिलाने की, कभी भी नहीं हिलेंगे, क्योंकि इस कदर हमारा ईमान मजबूत हो चुका है, इसलिए कि हमारी माँ ने हमारी तरबियत की है। हमारी माएँ, मैं बहुत सी माँओं को यहाँ पे जानती हूँ और उनकी माँओं को भी मैं जानती हूँ कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है। और आज ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये सारे माँ की तरबियत का नतीजा है। माँ ने तरबियत की है तो आज खुदा के घर में उसकी बारगाहों में बैठे हुए, वरना बाहर फिरते और संडे का दिन मनाते फिरते। पता ही आपको कैसे लोग करते। खुदा का शुक्र हो कि आप अपनी माँओं के लिए हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी किया करें कि हमारी माँ ने हमारी किस तरह की तरबियत की है। जिस तरह के तिमोथियस के हाथ में ये लिखा हुआ है, खुदा का बंदा कहता है कि उसकी माँ ने और उसकी नानी ने उसकी इस तरह की तरबियत की कि वो जब खिदमत को निकलता है तो वो उस बात को याद करता है और कहते हैं तेरी माँ ने और तेरी नानी ने इस तरह की तरबियत की कि आज तू खुदावंद की खिदमत कर रहा है। हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत बातें हैं जो हमारी माएँ और हमारी नानियाँ और हमारे बड़े हमारी तरबियत कर गए हैं। शुक्रगुजार, हम उनके शुक्रगुजार। आज भी बच्चों के लिए मैं कहती हूँ और नौजवानों के लिए खासकर कि बच्चे अपनी माँ की तरबियत को याद रखें। बच्चे माँ की तरबियत और उसकी तालीम और जो कुछ वो उनके लिए करती है उसको वो याद रखें। खुदा के घर में लेकर आए माएँ, संडे स्कूल लेकर के आए माएँ, उनकी हिफाजत करें, उनको यस्सु के लहू में छुपा दें, आके उनके यस्सु के हाथ में दे दें, उसके तहफ़्फ़ुज़ में दे दें, क्योंकि जो यस्सु के तहफ़्फ़ुज़ में रहता है, उसके लहू में छुपा रहता है, वो आखिर तक हर तरह की दुनियावी और रूहानी बरकत उस पर नाज़िल रहती है। ये आज़मा कर देखो कि जिन जिन माँओं ने तरबियत की, उन्हें संभाला, उन्हें यस्सु के पास माएँ लेकर के आई हैं, मैंने उन लोगों को देखा है, उन बच्चों को देखा, उन नौजवानों को देखा, उन ख़ानदानों को देखा है कि यस्सु ने उन्हें
नस्ल दर नस्ल बरकती है। इसलिए कोई यस्सु के तहफ़्फ़ुज़ में रहते हैं, यस्सु के तहफ़्फ़ुज़ में रहते हैं। इसलिए हमें उस राह पे तरबियत करनी है कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मिले। और फिर हम इमसाल की किताब में उसका 31वां बाब और 15वीं आयत में भी हम पढ़ें तो वो लिखा हुआ है, वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को क्या करती है, खिलाती है। 31 बाब 15वीं आयत, वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है। अपने घराने पर क्या करती है, निगाह करती है। अपने घराने के लिए क्या करती है, फिक्र करती है कि इन्होंने खाना खाना है, मैं इनके लिए खाने का बंदोबस्त इनके उठने से पहले करके रखूं। फ़लाँ बच्चे ने क्या खाना है, फ़लाँ ने क्या खाना है, मेरे शौहर ने क्या खाना है, उसके लिए हर चीज़ रेडी करके जो कुछ भी खुदावंद हमें मुहैया करता है, हम घर में औरतें जो हैं, माएँ जो हैं, वो इसका बंदोबस्त करती हैं, खाने का बंदोबस्त करती हैं, उनकी हर बात का हम ख्याल रखती हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो रात को उठ बैठती है, अपने घराने को खिलाती है। और फिर इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और 27वीं और 28वीं आयत में ये भी लिखा है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। क्या करती है, अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है, काहली की रोटी नहीं खाती है। और फिर उसके बेटे उठते और उसे मुबारक कहते हैं। और फिर शौहर भी क्या करता है, उसकी क्या करता है, तारीफ करता है या बदहोइयाँ करता है, तारीफ करता है। उसके वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। चल सुती रह, आप ही खा लेंगे, जड़ा जड़ा उठेगा किचन च जाएगा, अपनी मर्जी का खा। सुस्त नहीं है, एक्टिव, निगाह रखती है, उन्हें संभालती है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देती है, उन्हें अच्छा खाना मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है, उन्हें हर चीज़, उनके बैठना उठना सोना, उनके यहाँ तक कि उनके लिबास का, उनके कपड़ों का ख्याल रखती है। इसने आज क्या पहनना है। एक दफ़ा मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और खूब मैंने हैंग कर दिए, प्रेस कर कर, तब अच्छी सेहत थी। शहीद हमारे घर आए, हाँ जी इतने कपड़े प्रेस कर। तो मैंने कहा हाँ, इसलिए कि इनमें से कोई भी ये पहन सकता है। ये देख रही थी और उन्होंने घर जाके भी बताया कि वो देखो बाजी इस तरह के कपड़े प्रेस करके पाजी साहब में रखती हैं। मैंने कहा वो इनमें से कोई भी पहन सकती है। और फिर मैंने मशवरा देती हूँ, ये आज मोटा कपड़ा है, ये नहीं पहनना। ये माँ का किरदार है। अक्सर बीवियाँ ऐसे करती हैं, ये कपड़ा ना पहनो, माँ का रोल है। तो हफ़्फ़ज़ देती है, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, बीमार हो जाएंगे, लेकिन मौसम के मुताबिक वो सारा ख्याल अपनी औलाद का और अपने शौहर का भी रखती है। माँ का रोल ऐसा है कि वो अपने शौहर के लिए भी एक माँ का रोल अदा करती है। रातों को जागती है, हालात कैसे हों अपने मुंह से नमाला निकालती और बच्चों को खिलाती, दुआएं करती। रात जाग खुल जाए, नींद से हम जाग जाएं तो कोशिश ये होती है कि अब उठे हैं, चाहे लेटे भी हुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए दुआएं करें। अपने ख़ानदान को यीशु के लहू में छुपा दें, अपने शौहर को यीशु के लहू में छुपा दें, पूरे घराने को यीशु के लहू में छुपा दें और कहते हैं ए खुदावंद, हम तेरे लहू में अपने ख़ानदान और अपने बच्चों को। ये एक माँ का ऐसा रोल और ऐसा किरदार है कि वो बग़ैर किसी लालच के अपने बच्चों की परवरिश करती, तरबियत करती, उन्हें संभालती है। बग़ैर किसी मुआवजे के वो अपने बच्चों को संभालती और ऐसा रोल अदा करती है और ऐसा किरदार
अदा करती है। उसे रुपए पैसे से नहीं तोला जाता। वो रुपए पैसे की ये नहीं कि मैंने इतने घंटे काम किया और इसका मुआवजा मुझे दिया जाए। वो ऐसी जॉब नहीं करती कि 1 घंटे के हिसाब से अगर मैं काम करती हूँ तो मुझे इतना मुआवजा दिया जाए। वो सारी सारी रात भी काम कर लेती है, घंटों जागती है, लेकिन अपने ख़ानदान को बग़ैर किसी लालच के वो काम करती, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देती और उनके लिए हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती। और मैंने फिर ऐसी माँओं को भी देखा है। माँओं को आज मैं याद करती हूँ और उनके लिए अच्छी बातें कहूँगी। कई माएँ ऐसी हैं कि घर में दो खाने बनाती हैं। ये बच्चे ये नहीं खाता, ये बच्चा ये नहीं खाता, और दो कई दफ़ा मुझे कहते हैं पारिस दो क्यों बनानी है, टाइम ज़ाया, फिर आ भी गर्मी दे विच खड़ी रहना या इस तरह दा मेहनत करना। मैं कहती हूँ नहीं, एक बच्चा ये नहीं खाता, फलां बच्चा ये नहीं खाता, वो ये खा लेगा और हम ये खा लेंगे, बच्चे ये खा लेंगे, हम दोनों ये खा लेंगे, हम सादा ग़िज़ा खा लेंगे और बच्चों को ज़रा दूसरा खाना देंगे। ये इस तरह की माँ के अंदर माँ की ममता देखो तो बच्चे, मेरा ख्याल है कभी कभी तो याद करते ही हैं और कभी कई बच्चे नहीं याद करते इन चीज़ों के कि माएँ हमारे लिए क्या क्या करती, कैसे कैसे काम करती, किस तरह की कुर्बानी देती हैं। वो अपना दुख सुख भूल जाती है, वो बच्चों के लिए सब कुछ करती है कि बच्चे मेरे सुखी रहें, बच्चे मेरे खुश रहें, बच्चे मेरे शादमान रहें, बच्चों की कोई तकलीफ बीमारी कोई ऐसी आजमाइश ना आए। वो अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देती फिरती है, वो अपने बच्चों को संभालती फिरती है। हालात कैसे, आजमाइश कैसे, दुश्मन कैसा, वो सामने खड़ी हो जाती है एक दीवार की तरह। वो नहीं डरती हालात से, मुकाबला करती। वो उस वक़्त ऐसी शेरनी बन जाती है कि वो जिस तरह लिखा है कि जिस तरह परिंदे शीर जो जानवर जो ऐसे आ जाते हैं, मुर्गी या छोटे छोटे परिंदे, आपको देखा होगा परिंदों को भी, वो मुकाबला करते हैं, कौवों का मुकाबला, चील का मुकाबला, वो बचाती है, वो छुड़ाती है। इसी तरह माँ भी चाहे कैसा दुश्मन सामने खड़ा हो जाए, माँ दीवार बन के सामने खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे बच्चे में गलती भी हो, लेकिन माँ तहफ़्फ़ुज़ देती है, माँ संभालती है, माँ बचाती है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि यस्सु के पास बच्चों को लेकर के आए ताकि यस्सु के तहफ़्फ़ुज़ में रहें, उसके लहू में छुपे रहें, हर हालात, बुरे कल्चर, बुरी सोसाइटी से वो बचे रहें, बदी से बचे रहें। यस्सु के पास लेकर आओ जिसके पास तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जो हमें नस्ल दर नस्ल बरकत देता है, जो नस्ल दर नस्ल हमें संभाले रखता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, इमसाल की किताब में 1 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि माँ की तरबियत को तर्क ना कर। माँ की तरबियत, जो माँ तरबियत करती है, अच्छी तरबियत अच्छी राहों पर लेकर के जाती है, खुदा के घर में लेकर के आती है, तो घर में बैठकर उसे हिकमत की बातें सिखाती है। माँ की तरबियत को कहते हैं तो उस तरबियत को इस तरह संभाल ले जैसे गले में तोप बना के संभालते हैं, उसको ऐसे संभाल के रख जैसे बाजू पर वो तवीज़ वो जो बना के चमड़े का रखते हैं, उसको ऐसे बांध ले कि वो तुझे सारी ज़िंदगी वो बातें याद रहेंगी। उस तरबियत को तर्क ना कर। जो माँ तरबियत करती है उसको हमें जुटला नहीं देना, हमें उसे याद रखना है, हमें उन बातों को याद रखना है जो माँ तरबियत करती है। और फिर ये भी लिखा हुआ है मिसाल की किताब 6 बाब 20वीं आयत से 22वीं आयत तक, आए मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि जो माँ तेरी तरबियत करती है उसको कभी फरामोश ना कर। कई बच्चे माँ को कह देते हैं, मैंने सुना, मैंने देखा भी है, माँ बात करे ना अच्छी तरबियत की कि नहीं पुत्र इंज नहीं करना,
ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, अच्छी बातों को याद कर, माँ तेरी अच्छी तरबियत कर रही है, तुझे याद कर, उसको तरक ना कर। बच्चे मजाक उड़ाते हैं माओ का, ओ माँ तेनों की पता होवे, अजकल जमाना कंप्यूटर दा, अजकल जमाना वाईफाई दा, अजकल जमाना पता नहीं क्या क्या आ गया है। लेकिन माँ को कहते हैं सादा माँ है, साढ़े माँ बाप सादा ने, इन्हें पता ही नहीं। अजकल जमाना माँ जी कित्थे चला गया है, तुहानू नहीं पता जी है, ते सानू इत्थे ही रहन दिओ ताकि असीं दुनिया ते तरक्की करिए, साडा ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ पूरी सोसाइटी च लोग सानू जानणगे तुसीं सादा लोग हो, तुहानू नहीं इन्हां चीज़ां दा पता। लेकिन माँ जो तरबियत करती है उस पर कान लगा, उसे गौर कर, उसे गले में तोक बना के डाल ले। फलां वक्त में मेरी माँ ने तरबियत की, जिस तरह तमोथियस के हाथ में मैंने पढ़ा है कि उसको अपनी नानी की बातें भी याद हैं, उसको अपनी माँ की बातें भी याद हैं कि किस तरह मेरी माँ ने तरबियत की और फिर वो एक बड़ा सूरमा बन गया खुदा की खिदमत करते करते। इसी तरह आज भी हम जो इस जगह पे खड़े हैं और आप लोग खुदा से प्यार करने वाले, खुदा के घर में आने वाले, खुदा की प्रस्तुत, आपकी माँ ने भी आपकी तरबियत की है और आज आप खुदावंद की बारगाहों में बैठे हुए हैं। खुदावंद ने आपको बरकत दी है और आपकी नस्लों को भी वो बरकत देगा, इसलिए कि आप आते हो, आप घर में माहौल पैदा करते हो, आप बच्चों के लिए एक नमूना हो कि हम खुदावंद के घर में जाते, उसकी इबादत करते और फिर बच्चे आपको फॉलो करते हैं। जो कुछ आप तरबियत करती हैं वो उन्हें याद रखते हैं, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हम भी माँ का कहना, किसी वक्त हम भी मजाक करते थे, अम्मी क्या हो गया, और नहीं मैंने कपड़े तैयार कर दिए, आपको चर्च जाना है, तो हम मजाक करते थे, चले जाएंगे, चले। कहती थी अच्छा ये सब कुछ तैयार पड़ा है, ना जाओगे, जो आप दे आप होगे, मैं नहीं होगी, खुदा के सामने मैं सुर्ख रूं। लेकिन आज वो बातें याद आती हैं कि वाकई ही हमारी माँ ने कहा था, इन बातों को याद रखना, मैं खुदा के सामने सुर्ख रूं हूँ। खुदा के घर में जाओ, इबादत करो तो बरकत पाओगे, आपकी नस्लें भी बरकत पाएंगी। हम जो कुछ करके जा रहे हैं ये सब कुछ आपके लिए, आपको खुदा के घर में जाना है। वो संडे स्कूल से लेके छोटे छोटे बड़ी दूर चर्च, ना धूप ना सर्दी ना गर्मी देखनी, लेकिन माँ ने कहा चर्च जाना है, संडे स्कूल जाना है। हम जाते थे, हम 7 बहन भाई थे, लेकिन सबको लेकर के जाते थे खुदा के घर में। और खुदावंद का शुक्र है कि वाकई ही माँ ने तरबियत की, हम सारे बहन भाई अपने अपने ईमान में हम सब में मजबूत हैं, हम मजबूत हैं अपने ईमान में, इसलिए कि माँ ने अच्छी तरबियत की है। इसलिए आज की माँ को भी मैं कहती हूँ, आज की नौजवान जो यंग माएँ हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि अपने छोटे बच्चों को खुदा के घर में लेकर आते जाओ, क्योंकि जो कुछ वो यहाँ पर सीखेंगे वो आखिर तक उन्हें याद रहेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हालेलुया का नारा लगाते हैं, ये कहते हैं चल भी तेरी माँ वो बैठी है, चल ओदे सामने जाके हालेलुया कर। वो आता है छोटा दोता मेरा और आके कहता है हालेलुया, तो फिर मैं भी आगे कहती, क्यों, उसके अंदर रच बस गया। वो चर्च में देखता है, खुदा के घर में देखता है, बुत को जो इस लेके आती है, बेशक वो शोर करते हैं, लेकिन सिस्टर लिली कहते हैं नहीं नहीं आप लेके आओ, माहौल तो पाएंगे ना, कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं समझ जाएंगे। यूं ही हम जब खुदा के घर में बच्चों को लाएंगे, बच्चों को कलाम में लिखा है मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा। हमें खुदावंद के घर में बच्चों को लेकर के आने हैं। जिस तरह दुनियावी तालीम के लिए कि मुआशरे में हमारा बच्चा अच्छा इंसान बने, तालीम दिलवाते हैं, डिग्रियां दिलवाते हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फलां बन जाए, पायलट बन जाए, लेकिन अगर ये सब कुछ है और खुदा से दूर हैं, तरबियत नहीं की रूहानी तौर पर, तो ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि वो रूहानी तौर पर तो खुदा से दूर है। बरकतें देने वाला तो यीशु मसीह है, जिससे आपने उनको दूर रखा। तो आगे सरफराजी ये वक्ती है सब कुछ। ये जो कामयाबियां कहते हैं डॉक्टर बन गया, फलां बन गया, फलां बन गया, ये वक्ती हैं। लेकिन अगर खुदा के घर में लेकर के आओगे, रूहानी तौर पर बच्चों के मजबूत कर दोगे, तो फिर सारी चीजें मिलकर वो एक अच्छी चीज बच्चों के लिए और नस्ल दर नस्ल बरकत का बायस बनेंगे। आपकी सलामती के लिए, सरफराजी के लिए मैं दुआएं करती हूँ। इसी तरह मैं कहूँगी कि अपने रिश्तों की कदर करना जानो, अपनी माँ की कदर करना जानो। आपके लिए आंसू बहाती हैं, रोती हैं, रातों को जागती हैं, आपकी सलामती के लिए, सरफराजी के लिए दुआएं करती हैं। तो क्यों माँ का मजाक उड़ाते? और फिर बाइबल मुकद्दस में इसका भी जिक्र है कि जो बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, वादी के कौवे उनको उचक ले जाएंगे। नाफरमानी जो बच्चे करते हैं, मैंने बड़े बच्चों को देखा है, माँ बाप के नाफरमान बुरे तरीके से आगे से जवाब देते हैं। मैं उनको कहूंगी मिसाल की किताब पढ़े, और उन बच्चों के लिए भी लिखा गया है, जहां पर माँ का किरदार है वहां नाफरमान बच्चों के लिए भी लिखा गया है कि वादी के कौवे उन्हें उचक ले जाएंगे। नाफरमान जो बच्चे हैं वो कभी ज़िंदगी में, दुनिया में कामयाब नहीं होंगे। जो बच्चे माँ की तरबियत पर कान लगाते हैं, जो बच्चे माँ जिनको अच्छी राहों पर लेकर के चलती है, उन बच्चों को याद रखना चाहिए। जब माँ दुआ करती है तो बच्चों की सरफराजी के लिए बच्चों को भी चाहिए माँ से दुआएं ले, ना कि वो ज़बान से तो वो कुछ नहीं कहेगी नाफरमान बच्चों को, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान रहती है, कुछ कह नहीं सकती। लेकिन जो बच्चे फर्माबरदार, माँ की तालीम, उसकी तरबियत पे कान लगाने वाले, खुदावंद उन बच्चों को सरफराज करता है। खुदावंद उन बच्चों को बरकत देता है, उनकी नस्लों को बरकत देता है, जो अपनी माँ की तरबियत पर कान लगाते हैं, ध्यान देते हैं। मैं अपने बेटे के पास थी, रॉबर्ट के पास, तो कोई बात हो रही थी खाना पीना, हम क्या खाते हैं, हमें क्या पसंद है, हम किसके हाथ का खाना खाते हैं। कहता है कि 10 खाने बना के यहाँ पे रख दो तो एक मेरी माँ का खाना भी होगा, तो मैं इन 10 खानों में से पहचान लूँगा मेरी माँ के हाथ का खाना कौन सा है। वो इस कदर जो कुछ मैंने उसे सिखाया, जो कुछ बच्चों को सिखाया, वो याद रखते हैं। वो घर में कोई बात अपने बच्चों की भी हो तो वो कहेगा अम्मी ने मुझे ये सिखाया है, अम्मी ने मुझे ये तरबियत दी है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं खाना, इस तरह की बात नहीं करनी। यानी हर वो बात उसको याद होती है। मैं कहती हूँ कि हर बात को फॉलो करता है। एक बेटा है लेकिन फॉलो मेरी बातों को करता है। कहता है माँ ये कहती है, उसे पता है कि माँ ने अच्छी तरबियत और हिकमत की बात मेरे साथ की। वो बड़ा खुश होता है, हर बात में वो माँ को याद करता है। और सारे बच्चे मेरे इसी तरह, खुदावंद का शुक्र है, मेरी हर एक बात को, कभी हालात दुनिया में कैसे हो जाए, बेटियां भी कहती हैं अपनी माँ को फॉलो करो। माँ ने किस तरह हालात का मुकाबला किया, माँ किस तरह हमारे बाप के साथ चली, आज तक वो जो चली है तो खुदावंद ने उसे बरकत दी है, बर्दाश्त किया, बरकत दी, जो भी काम किया कंप्रोमाइज़ किया अपने शौहर के साथ, और खुदावंद ने आज हम दोनों को मजबूत किया और संभाला और हमारी खिदमत को कायम किया और दुनिया की सरहदों को तक हमें ले गया। एक माँ का रोल भी अदा किया और एक बीवी का रोल भी मैंने अदा किया, इसलिए फिर वो ख़ानदान कामयाब होते हैं।
इसलिए कि शुरू ही से यस्सु के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आप को भी दे दिया और बच्चों को भी दे दिया। खुदावन तू ही हमें संभालेगा और तू ही हमें कायम रखेगा। घर में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि बच्चों ने उस सारे माहौल को देखा है। हमारे माँ बाप कैसे रहते, हमारी माँ कैसे रहती है, हम किन किन हालात से गुज़रे हैं, लेकिन खुदावन ने हमें कामयाब किया इसलिए कि ऐसा रोल और ऐसा किरदार अदा किया कि वो ही जिस तरह माँ ने तरबियत की कि बूढ़े होकर भी उससे नहीं मुड़ना है। हमारी माँ ने कंप्रोमाइज़ किया, हमने देखा किस तरह हालात से गुजरी। इसी तरह फिर वो सब कुछ देखते हुए आज हम भी उसी तरह, और आज हमारे बच्चे भी फिर उन बातों को याद करते हैं, एक दूसरे को कहती हैं बेटियां माँ को देखो कैसे कैसे हालात में से गुजरी है, लेकिन कायम रही है, बर्दाश्त किया, और आज खुदावन ने उनके वसीला से हमें बरकतें दी हैं, इसलिए कि वो हर हालात में हमारे लिए दुआएं करती रही हैं और ख़ानदान को कायम रखा, मजबूत रखा, जोड़ के रखा, तो हफ़्ज़ फ्राहम किया है और खुदावन ने बरकतें दी हैं। और खुदावन आप सबको भी, जिन्होंने ऐसे हालात में मुकाबला किया, आप सबको मैंने देखा है और हर एक मैंने माँ को देखा है कि किन किन हालात से ये गुजरी हैं। मैंने सारी माँओं को देखा है और खुदावन ने आज उन्हें सरफराज किया, बरकतें दी, बच्चों के बच्चे दिखाए। ये कितनी बड़ी बरकत है। हम कहते हैं हम बूढ़े हो गए, लेकिन इतने बूढ़े नहीं हुए, लेकिन अपनी नस्लों को देख लिया, बच्चों को बच्चे देख लिए, इसलिए कि खुदावन में हम कायम रही हैं और हमने ये दुआएं की हैं कि हम खुदावन तूने हमें बच्चों के बच्चे दिखाए, इससे बढ़ के और क्या शुक्रगुजारी हो सकती। खुदावन ने इतनी बरकतें दी, तो खुदावन उन माँओं को बड़ी बरकत देगा जो अपने बच्चों को यीशु के पास लाती हैं, यीशु के तहफ़्फ़ुज़ में दे देती हैं, खुद संभालती हैं, खुद फिक्र करती हैं, उनके लिए दुआएं करती हैं, उनको रातों को जागती हैं, आंसू बहा बहा के दुआएं करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, उन्हें वक्त पर उठाती हैं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती हैं, उन्हें साफ़ सुथरा उनकी सेहत का ख्याल रखती हैं। इन माँओं को खराज तहसीन पेश करते, ऐसी माँओं को जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करती और कहते हैं कि वो सुबह होते ही उठ बैठती और अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करती है। और फिर खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है, इफसियों के खत में उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत में ये लिखा हुआ है, हुक्म भी है और वादा भी है। तू अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना, और फिर क्या होगा, और दुनिया में भी उम्र दराज होगी। हुक्म भी दिया है कि इज्जत कर, और फिर वादा भी किया है ये बरकतें तुम्हें मिलेंगी। और फिर मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है कि उन जिन्होंने इस आयत पर, खुदा के कलाम पर, इस हुक्म पर अमल किया, और दुनिया में मैंने उन लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की, उनकी देखभाल की, उनकी निगहदाश्त की, उनकी परवाह की, उनकी कदर की, उनकी हिफाजत की, तो खुदा ने इस दुनिया में ही उनको ऐसी ऐसी बरकतें दी हैं। और मैं उन्हें कहती हूँ ये बात कि तूने अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत की है, तूने उन्हें बड़ा संभाला है, तूने बड़ी केयर की है, तूने बड़ी परवरिश कर रहा है बच्चों की तरह। जिस तरह हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते थे, आज उन्हें भी ज़रूरत है कि हम उनकी ऐसे ही परवरिश करें, उनको ऐसे ही संभालें, उनकी ऐसे ही खिदमत करें जिस तरह वो हमें संभालते रहे। और फिर जब ये भी हुक्म और वादा, हुक्म के बाद जो वादा किया है कि फिर ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी, आसमान पर भी इसका मैंने लोगों को अजर पाते भी देखा जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत की, बरकत मिली, सरफराजी मिली, दुनिया में कामयाब हुए, नस्ल दर नस्ल वो बरकतें उनमें शिफ्ट हो गई हैं जो खुदा ने इस हुक्म के मुताबिक और जो वादा उसने किया है, वो बरकतें उनकी नस्लों में भी शिफ्ट हो गई।
اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی۔ اور پھر یہ بھی جو نافرمان ہے پھر ان کے لیے بھی سزائیں ہیں، وہ اگر ہو سکے تو میں ان بچوں کو، نوجوانوں کو کہوں گی کہ یہ اس میں آپ بائبل مقدس میں پڑھیں کہ فرما برداری کی کیا برکات ہے اور نافرمانی کی کیا سزا ہے۔ ہمیشہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی تابع داری کرو، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یسوع کی نگاہ میں ماں کی بڑی قدر ہے۔ جس طرح یسوع کے پاس بچوں کو لے کر مائیں آئیں تو یسوع نے ان کو ڈانٹا، شاگردوں کو ہٹ جاؤ پیچھے، ان ماؤں کو آنے دو۔ یسوع کی نگاہ میں بائبل مقدس میں بہت سی پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ پڑھو تو ماؤں کا بڑا کردار، بڑا رول ہے کہ کس طرح کس ماں نے اپنے بچوں کو سنبھالا، کردار ادا کیا، اور یہاں تک پھر وہ ماؤں کے وسیلہ وہ آگے ان کی اولاد، بیٹے سورما بن گئے۔ ماؤں نے تربیت کی، تحفظ دیا، سنبھالا اور خدا کی راہ پر وہ لے کر کے آئیں۔ بچوں کو ہمیشہ اپنے ماضی پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھتے بچے، تو سانو کی کیتا نہ پیدا کردا، نہ سانو سنبھالدا، اسی تے آپ ہی پل گئے ہیں، اینا پیسہ نہیں تے پیدا کیوں کیتا؟ کہتے ہیں نا بچے، کہتے ہیں اگر اتنا ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے پھر پیدا کیوں کیا؟ اگر ہماری پرورش نہیں تھے کر سکتے کیوں ہمیں پیدا کیا؟ بچے کہتے ہیں ان باتوں کو، لیکن میں کہتی ہوں اپنے ماضی کو یاد رکھو کہ ماں نے کس طرح دن اور رات جاگ کے سنبھالا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے کہتی ہے کہ خود ماں خود گیلے پہ لیٹتی ہے اور بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے، ساری رات جاگتی ہے، اینو گرمی نہ لگے، ایسی بڑا تیز ہے، اینو ٹھنڈ نہ لگے، اٹھ کے وہ اس کو بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، لائٹ چلی جائے ساری رات بہ کے پنکھا دیتی رہتی ہے، ہوا دیتی رہتی ہے، خود جاگتی رہتی ہے، بچوں کو کہتی ہے کوئی پریشانی نہ ہو۔ کبھی بچوں نے یہ یاد کیا؟ اپنے اس ماضی کو یاد کیا؟ کبھی نہیں یاد کیا۔ اگر یاد رکھے ان باتوں کو تو آج اپنی ماں کی کیا کریں؟ قدر کریں۔ آج اپنے بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان چھوٹے بچوں کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے ماضی کو یاد رکھے کہ ہماری ماں نے کس قدر مصیبتیں اور قربانیاں دے کے ہمیں یہاں پر کھڑا کیا اور کامیاب کیا۔ اکثر وہ رکشوں پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا ہوا لگتی ہے جنت کی، جنت کی ہوا۔ ماں کہتے ہیں جنت کمانی ہے، کما لو۔ ہاں، اپنی ماں کی عزت کرو، قدر کرو، باپ کی عزت کرو، دونوں کے فرما بردار ہو تو یہاں ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ خوش ہیں، شادمان ہیں، خداوند میں، یسوع میں کامیاب ہیں، سرفراز ہیں، دنیا کی ہر ضرورت خداوند پوری کرتا ہے، ادھر ہی سب کچھ، ادھر ہی اجر مل رہا آپ کو، ماں باپ کی فرما برداری کا اجر یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو۔ نوجوان بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو میں یہی کہوں گی اپنی ماں کی قدر کرو، اپنی ماں کے اس کردار کو یاد رکھو کہ کس طرح اس نے میرے لیے قربانیاں دی۔ میں کہتی ہوں کئی دفعہ میں خدا معاف کرے کہنا نہیں چاہتی، لیکن میں بڑی بڑی جگہ پہ جاتی ہوں جہاں پہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی، اتنی بڑی تصویریں لگائی ہیں، اور ان بچوں کو بھی میں جانتی ہوں جنہوں نے ماں کی قدر نہیں کی، پھر ان تصویر کو لگا کے میموریل سروس پہ پھر آنسو بہانا، پھر رونا اس تصویر کے آگے، کیا فائدہ ہے؟ فائدہ جب وہ حیات تھی، زندہ تھی، تو نے اس کی قدر نہیں کی، تو نے اس کی عزت نہیں کی، تو نے اس کی تربیت پہ کان نہیں لگایا، تو نے اس کی حکم کو نہیں مانا، پھر اس کے آگے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ بعد میں ماں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، ماں مر گئی، دنیا تے سب کچھ چلا گئی، ماں مر گئی،
ख़त्म हो गया सब कुछ। जब माँ ज़िंदा थी तब तो आपने उसकी कदर नहीं की, तब तो आपने उसकी इज्जत नहीं की। माँ एक ऐसा रिश्ता है, माँ कुर्बानी का नाम है, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं। पैदा कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, माँ एक बड़ी तकलीफ में से गुजरती है, एक प्रोसेस में से गुजरती है, इतने दुख में से गुजरती है। आप बच्चों को अगर ये चीज़ें याद करवाएं तो बच्चे ये चीज़ें याद करके भी माँ की कदर करें। तो कहते हैं माँ जब बच्चा उसके सामने आ जाता है तो वो सारे दुख भूल जाती है, कि इस कदर माँ की ममता उसके अंदर होती है कि वो सारे दुख भूल जाती है। बच्चों को इन बातों को याद रखना चाहिए, माँ की कदर करनी चाहिए। फिर जिस तरह इमसाल की किताब में लिखा हुआ है, अपनी माँ को शादमान रख। हम रख सकते हैं अपनी माँ को शादमान? हर रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी तो रख सकते हैं। साल दे साल ते असीं रख सकते हैं, हर साल तो चलो जोश आ जाता है, जोश। मदर डे अज, फादर डे अज, फिर माँ भी याद है, बाप भी याद है, अगले पिछले बड़े छोटे नानियां दादियां याद। साडी नानी सी बड़ा संभालिया, बड़ी तरबियत, दादी सी बड़ा। लेकिन माँ की तो आप हर रोज़ कदर को जाने ना, आप उसकी कदर करें कि क्या क्या उसने हमारे लिए की है। तो आप हर रोज़ ही उसको शादमान करें, कोशिश करें कि हम अपनी माँ को कैसे खुश रख सकते हैं। अपनी माँ को शादमान रख, चलो साल दे साल से अपनी माँ की कुर्बानियों को, उसकी परेशानियों को, जो तकलीफ़ें उसने बर्दाश्त की, जिस तरह आपकी तरबियत उसने की, चलो साल दे साल याद रख के असी की करिए, माँ नू खुश कर सकिए। जो अच्छा खाना खाना चाहती है उन्हें पेश करो। माँ अज तू की खाएंगी? चल पूरा साल तो तेन पूछया नहीं, मदर डे ते अज की खाएंगी? अज केड़ी चीज़ पसंद है, मैं तेनों लैके जावांगा या जावांगी। कोई ना कोई खुशी से अपनी माँ को ऐसा तोहफ़ा और उसकी उस मोहब्बत को याद करो, और उसके लिए आप छोटे छोटे गिफ्ट, अच्छा खाना खिला के उसकी, और कुछ नहीं तो उसकी तारीफ़ करो। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसका शौहर उसकी क्या करता है, मजलिस में उसकी तारीफ़ करता है। बेटे भी उठते और मुबारक कहते हैं, अच्छी माँ जो है, बेटे उठते और उसको मुबारक कहते हैं, और शौहर भी उसकी क्या करता है, तारीफ़। कितने कितने तारीफ़ करता है? छुप छुप के, कोने आज छुप के, मजलिस में, मजमा में, महफिल में उसकी तारीफ़ करो कि तू एक अगर अच्छी बीवी है तो एक अच्छी माँ भी है। तेरा रोल क्या है, तेरा किरदार क्या है, तूने किस तरह अपने ख़ानदानों को संभाला है। तू भूखी रही, तू किस तरह परेशान रही, तू आंसू बहाती रही, रातों को जागती रही, अपनी नींदें हराम की। माँ की इस कदर वैल्यू है। आज आप सब जिनकी माएँ खुदा के पास चली गई हैं, उन माँओं को याद करें कि हमारी माँ ने किस तरह हमारी तरबियत की, हमें खुश रखा, हमारे लिए क्या क्या करती रही। माजी को याद करें, और जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, हयात हैं, वो अपनी माँ की इज़्ज़त करें, कदर करें कि देखो मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया, इस दुनिया में मुझे लेकर के आई है। आज मैं सरफराज हूँ, कामयाब हूँ, खुदावंद के साथ चलने वाला, खुदावंद ने बरकतें दी हैं, खुदावंद ने औलाद दी है। किसके वसीला? एक माँ के वसीला से। सो हमें जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें। अक्सर मैं जब देखती हूँ कि कहते हैं ओल्ड होम, माएँ रोती हैं, बच्चे छोड़ के चले गए, नाफरमान। तो जब छोड़ के चले गए हैं तो फिर भी माँ की ममता देखो, फिर भी माँ उसके लिए दुआ करती, कहती कोई बात नहीं, खुदावंद उन्हें अपनी पनाह में रखे, खुदावंद उन्हें ज़िंदगी दे, खुदावंद उन्हें खुशियाँ दे, खुदावंद उन्हें हर तरह की बरकत अता करे। लेकिन हमें अपनी माँओं को ओल्ड होम नहीं छोड़ के आना। हमने जिस तरह माँ ने हमारी
हिफाजत की, पाला पोसा, हर गर्मी सर्दी का ज़रूरत का ख्याल रखा। आज जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, कभी भी ये कोशिश ना करना कि हम इसे नहीं संभाल सकते, अनु फलाना पुत्र सांभे हाँ, उन्हों फलाना पुत्र सांभे हाँ। नहीं, हमें खुद अपनी माँ का, जिस तरह हर एक बच्चे की ज़रूरत का ख्याल रखती है, इसी तरह हमें भी अपनी माँ की हर ज़रूरत का ख्याल रखना है। खुदावंद आपको